everyone, welcome to your PD and this is Shubha. So this video is for all the ones who are preparing for the bail examination, and in this time I'm going to solve out the paper which was conducted for the civil branch in August 2024. Now you see, whenever you're preparing for any organization, PYQs are must. That is previous year question paper. Give you a highlight that what are the most probable topics that you need to prepare for that section. Now in this video I'm going to talk about the English section, and here the most important topics are, I would say, about the jumble sentences, reading comprehension, fill in the blanks which comprise of the tense, preposition, vocabulary based which talks about the synonyms, antonyms, spellings are the other type of questions which are asked in your examination. Now let's get started. I'll give you a timer of a brief seconds also. You can pause out the video when you're solving the paper with me. Also you can take out the printout and you can solve the paper on your own. So let's get started, and the very first question, it is based on the vocabulary, that is synonym based. So the question is, you have to give the appropriate synonym, and the word which is given to you is the word that is deluge. Deluge actually is a severe flood or something that is termed with the heavy rainfall, right? So that is something that is called as a deluge. Now you have got four options and you have to tell about the synonym. Synonym means something that matches the meaning of it. Now, whenever you are talking about the other words, you have the options. Just think about it, which are the positives and which are the negatives in it, right? So here it is desiccate. Desiccate is actually something that is drying up. It is a dry space. Dehydrate also talks about the same meaning. D means negative, right? So it where in this also we'll be talking about something that lacks the water, right? So again a negative word, right? So these two are the negative words, but what we want is a positive word. Dehydrate means when you are removing the water from the surface, so that is termed as dehydrate. पानी खत्म होना, desiccate भी हो गया वो जगह जहाँ पे पानी नहीं है, तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं अगर deluge होता. प्रिस्क्राइब किस चीज़ को करते हो आप, किसी चीज़ को आप बताते हो, जैसे प्रिस्क्रिप्शन मिलती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, यू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट, ही प्रिस्क्राइब्स यू सर्टेन मेडिसिन्स, सर्टेन ड्रग्स, सो दैट इज टर्म्ड एज प्रिस्क्राइबिंग, राइट? सो गिविंग दैट डिटेल्स, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा. ओनली वन वर्ड, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मीनिंग, दैट इज सबमर्ज. और सबमर्ज का मतलब क्या होता है? when you are going under the water, okay? To go for something that is underwater, that is termed as the submerge. So I hope the very first is very much clear कि deluge का meaning क्या आया. Let's go with the second word, and it is fill in the blanks, and here you have to fill in the blank with the word that is preposition based है ये आपका. The old lady was moved dash pity at the sight of child wailing in pain. कि ओल्ड लेडी को बहुत बुरा लगा और उसने रो के चिल्लाना शुरू कर दिया. सो व्हेन यू आर मूव्ड अवे with something, you're moved with something, so that is a probable word, and that is with is the right word in the preposition. So here you learn about the phrasal verbs also. Phrasal verbs भी आते हैं जब आपको एक एक्शन दिया जाता है और साथ में एक preposition दी जाती है. Move is an action और साथ में कोई भी preposition लग गई तो that is a phrasal verb. और आपको list of phrasal verbs है, उसमें से आपको decode करना होता है कि what is an actual that fits the sense of it, right? So it is you are moved with that pity. Now next is the misspelled word you have, and there are four options. Misspelled is where you are having a problem in the spellings, और spellings एक favorite section है BHEL के पेपर के लिए. I hope आपने खुद से ये solve कर लिया होगा तब तक. Conspiracy. अब conspiracy क्या होता है? It is CONSIPRACY. बिल्कुल ठीक है. This is a right word. Now in the spellings I have given you deliberately the right spellings. Actual the question was यहाँ पे RECY दिया हुआ था. आप इसको learn कर लें, that would be helping you out कि कोई भी ऐसा option repeat होता है आपके पेपर में तो it will be giving you a good action for that. So conspiracy हो गया, एक दूसरे के बारे में पीछे से बात करना, right? किसी के बारे में idea करना, किसी चीज़ को present करना, किसी secret की बात करना. Apparent क्या होता है? Which is termed as, आप बोल सकते हैं जो चीज़ लगती है सही पर होती नहीं है, that is something that seems to be real or true but maybe not, and the spellings are APPARENT. So what I'm helping you out is एक तो spellings याद रखना और एक इसका meaning भी याद रखना. Apparent, something that we feel is true but that may or may not be true, okay? or something for the real also. Definition. Definition के क्या spelling होते हैं? DEFINITION, and that is बिल्कुल right है. And that is also, that is something that you represent, किसी का meaning देना, किसी की exact चीज़ों को define करना. Next word is palpable.
Palpable is that is easily, that is tested by the senses or by the mind. जिसको हम टेस्ट करते हैं माइंड से, भी एक फेथ करते हैं, फील करते हैं, that is termed as something that is palpable. So I hope these four words are very crystal clear. Now comes the next question, and that is you are to substitute the word, right? You have to substitute the underlined word. If no improvement is required, then go for no improvement. Okay, and the question is, the president gave his assent to the bill after both the houses of the parliament has passed it. So do you feel कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है? Let's take a pause and think about it. प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया, मतलब उसने एग्री किया बिल के लिए, आफ्टर बोथ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने पास किया, मतलब ना ही टेंस की गलती लग रही है मुझे, और गेव हिज असेंट पास्ट में ही है, एग्रीमेंट दे दिया, मतलब आई डोंट थिंक सो इट इज एनी प्रॉब्लम. एंड इट इज आफ्टर के लिए, क्वेश्चन में आफ्टर था, टू द बिल आफ्टर, फॉर द हाउसेस नहीं आएगा, जब दोनों ने पास कर लिया तब प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दे दिया, दैट इज एग्रीमेंट दे दिया, तो आंसर वुड बी द B1 एंड दैट इज नो इम्प्रूवमेंट. Again you have the question that is appropriate antonym select करना, and the question is bifurcate. Bifurcate क्या होता है? जब आप चीजों को दो में डिवाइड कर देते हो. Antonym आ गया, then you have to find the opposite in that, right? So bifurcate is, then it is dividing into two. Ramify होता है जब आप branches, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें भी ramification कर रहे हो, तो आप spreading कर रहे हो, तो मतलब ये तो मिलता जुलता है. कंबाइन मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ जोड़ देना. सो दैट इज, ये तो कह रहा है कि ज्वाइन कर दो, तो मतलब लग तो यही रहा है क्योंकि इसमें हम मिक्स कर रहे हैं. रेमिफाई में भी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. डाइवर्ज में भी क्या करते हैं, जैसे दो रोड्स डाइवर्ज हो गई, मतलब दोनों क्या हो गई, निकल गई, तो दैट इज ऑल्सो डिवाइडिंग. और डिमार्केट क्या होता है, लाइन डिमार्केट कर दो, मतलब सेपरेट कर दो, तो ये भी तो यही मीनिंग है. ओनली वन ऑप्शन, दैट इज एन एंटोनिम, दैट इज कंबाइन. अगला आ जाता है आपके पास सिनोनिम. सिनोनिम आपका वर्ड है, दैट इज योर voracious. Voracious, what is the meaning of voracious, guys? So voracious is a word which means eating or wanting large amount of food. जैसे होता है ना एक पर्सन जो ग्लटनी है, जिसको बहुत ज्यादा खाना पसंद है, बहुत ज्यादा ईटिंग करना पसंद है, that is a person who is voracious in nature. That is everything comes and I'll be taking it inside. So that is voracious. अब voracious का हमने क्या फाइंड करना है, सिनोनिम. अब देखो इनसैटिएबल होता है जिसको हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, मतलब आप एक ग्रीडी पर्सन लगा सकते हो इसके लिए, दैट कुड बी इनसैटिएबल. स्मॉथर्ड आ जाता है अगेन, जो जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेम ग्रीडी हो जाता है, ठीक है, द पर्सन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड और सेटिस्फाइड. अपीज्ड क्या आ जाता है आपके पास, इट वुड बी सिंपली, आई वुड सेइंग यू आउट इज एक्चुअली कंटेंटेड में आ गया आपका हैप्पी और सेटिस्फाई आ गया, तो इसमें आ जाएगा इट इज इनसैटिएबल, क्लियर हो गया आपको, ग्रीडी, एंड इट इज कंटेंटेड एक पॉजिटिव वर्ड है. वोरेशियस आपका वर्ड आ गया जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए. स्मॉथर्ड एक तरह का, वैसे सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग, स्मॉथर्ड इज नॉट एक्चुअली वर्ड. यहाँ पे जो स्मॉथर्ड मेंशन है दैट इज समवन जिसको किल किया जाता है, जब मुंह पे एक नकाब या बुरका डाल दिया जाता है और उसको किल करना, दैट इज टर्म्ड एज यू स्मॉथर्ड समवन, राइट. सो देयर इट गोज रॉन्ग, एंड स्मॉथर्ड इट इज, दैट इज समथिंग यू वुड चेंज इट आउट, ठीक है. सो ये आपका स्मॉथर आ गया. और कौन सा वर्ड है आपका, खुद सोचो अभी मीनिंग कौन सा रह गया हमारा. इट इज अपीज्ड. अगेन अपीज्ड कैसे आएगा, इसका मतलब अपीज्ड का मतलब भी वही आ गया, जब हम किसी को काम कर रहे हैं, गुस्सा कम दिला रहे हैं, ओके ओके इट्स ओके इट्स फाइन, इट्स कामिंग समवन. सो ये आ गया आपका अपीज्ड में. अब मेरे पास 4 वर्ड्स हैं. स्मूथर्ड किल से आ गया आपका, कंटेंटेड पॉजिटिव आ गया, इनसैटिएबल आ गया जिसको हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, जिसको ग्रीडी होता है. तो या दिस इज ओनली वन विच इज लिंकिंग, जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते लिंकिंग, क्योंकि बाकी का कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है. सो 6 का आ गया ए ऑप्शन. लेट्स गो विद द 7th वन. ओके, फाइनली वी आर हैविंग अ जम्बल्ड सेंटेंस, और इसमें भी सेम वे. जम्बल्ड में आप देखिए क्या आपको फाइंड करना है. इट इज द वेरी फर्स्ट, you have to find it out as go for the noun. अब हम इसको पहले पढ़ते हैं. I never knew it would make you so unhappy, she added. Okay, the little princess said, I shut you in the golden cage because I wanted to have you all to myself. Okay, ये आ गया हमारे पास noun.
देन शी ओपन द केज एंड लेट द बर्ड, ओके, तो इसके मतलब इसमें हमने शी को भी इंट्रोड्यूस किया और बर्ड को किया, बट शी प्रोनाउन है तो इससे पहले लिटिल प्रिंसेस आना चाहिए. I love you enough to grant you freedom and let you be happy in your own way, she added further. So basically आपके पास नाउन सिर्फ इसमें ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप बी से स्टार्ट करोगे. बी हमारा इनमें आ रहा है, तो ये ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए. हमारे पास ऑप्शन है डी या फिर ए ऑप्शन, राइट. अब देखो इसमें फर्स्ट आपका बी आ गया. नाउन के बाद आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, दैट वुड बी जिसमें नाउन में प्रोनाउन मेंशन होगा. अब नाउन में प्रोनाउन मेंशन है शी के साथ, क्योंकि इसमें तो बर्ड भी आ रहा है, बट पहले ये अकेला नाउन प्रोनाउन वाला होगा, फिर इट वुड बी बर्ड की इंट्रोडक्शन एंड देन इट वुड बी आउट द बर्ड लास्ट. सो इट इज योर BADC, राइट. तो आई होप यू हैव सॉल्व्ड दिस वे ओनली. पहले आपने नाउन को ढूंढा, नाउन के बेसिस पे जो प्रोनाउन लगा है, देन यू डेड इट आउट, यू गेव इट अ कॉन्टेक्स्ट अगैन ऑफ द वर्ब, एंड लास्ट में आपने दूसरा नाउन को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है. सो इट इज BADC. अगैन द नेक्स्ट इज ऑल्सो जम्बल्ड वन ओनली, ठीक है, नेक्स्ट भी जम्बल्ड है. तो we enjoyed reading books that we much own more than the books we borrow, ठीक है. and then it is, if you own a book you are not afraid to mark up your favorite places. इसमें V है, इसमें U करके favorite places आ गया, but a borrowed book must be treated with a considerable formality. लेकिन but से कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, चाहे इसमें नाउन है हमारे पास, मतलब C से स्टार्ट नहीं हो सकता, C में ऑप्शन भी नहीं है. द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द सोर्सेज, या दिस कैन बी द वेरी फर्स्ट, क्योंकि इसमें ही नाउन आ गया एक तरह का. तो द डी विल बी स्टार्टिंग, ये दोनों हो गए गलत. डी से स्टार्ट होगा, पहले हमने ये ढूंढ लिया. अब इसमें देखो जिसमें रीडिंग के बारे में दोबारा से लिखा होगा, रीडिंग के बारे में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, रीडिंग के बारे में यहाँ पे ही मेंशन है, तो डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए एक में ही है. इट इज डी ऑप्शन. पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इफ यू हैव एनी डाउट, या पहले कर लो. जैसे अब नेक्स्ट है, अब खुद सोचना कि इसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं. अगैन ये भी हमारे पास जम्बल्ड ही आ गया है, तो जम्बल्ड में क्या आएगा इसमें, लेट्स गो. अच्छा, अब हाउएवर से कभी होगा, स्टार्ट नहीं होगा, चाहे इसमें यूसुफ लिखा हुआ नाउन है, लेकिन हाउएवर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे. देन इट वाज डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, इसमें यूसुफ भी है और इंट्रोडक्शन भी हो रही है, ठीक है. दिस कैन बी कंसीडर्ड बट वी आर नॉट श्योर. सेकेंडली से नहीं होगा, फर्स्ट से नहीं होगा, मतलब बी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए हमारे पास एलिमिनेट. सो सी, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व्स व्हेन यू आर एबल टू रिकॉर्ड द वेरी फर्स्ट इन योर जम्बल सेंटेंसेस. पहले पे जाओ, दूसरा खुद 2 ऑप्शंस में बना के चाहे देख लेना अगर प्रॉब्लम लगे. जैसे अब इसमें यूसुफ इंट्रोड्यूस है, राइट. अब इसमें देखो, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यूसुफ टू ईट द डिनर दैट नाइट. अब यूसुफ रिपीट नहीं होगा, मतलब बी के बाद ए नहीं आएगा, क्योंकि ही आ सकता है इसके बाद, या उसके बारे में आ सकता है, क्योंकि कभी देखा है कि एक ही पर्सन को बार बार रिपीट हो रहा है. नो, इट वुड बी बी के बाद आपका डी आ रहा है, क्योंकि इसमें मदर आ गया, बी डी, ये सी आंसर आ गया आपके पास. मतलब बाकी सॉल्व करना भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वंस यू आर एबल टू डू इट इन दिस वे. गो फॉर द 10th वन. अगैन सेंटेंसेस हैं आपके पास, कोहेरेंट पैराग्राफ से आपको सॉल्व करना है. ओके, सो हेयर अगेन आई हैव द क्वेश्चन, और इसमें आ गया आपका सेम वे फाइन करते हैं हम. दे, ओके, यहाँ पे ये दे से स्टार्ट है, दे लुक स्वीट एलिगेंट बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ्स, मतलब दे से स्टार्ट. आई डोंट थिंक सो दे से स्टार्ट हो सकता है. समवन नोटेड रिसेंटली दैट प्रेजेंट डे बेबीज आर पेक्युलरली लाउड थ्रॉट, लेकिन समवन से है, बट इट कैन बी, क्योंकि इसमें बेबीज के बारे में आ चुका है. बट से तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो सी वाला तो कोई है तो खत्म हो गया. सी और ए वाला खत्म है, नहीं हो सकता, और ऑप्शन भी नहीं है. स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकंड्स इन द क्लास. हाँ, डी से भी स्टार्ट हो सकता है, और हमारे पास ऑप्शन भी यही है, बी और डी वाले ही हैं. अब देखते हैं कि क्या ये वाला इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट, फर्स्ट किस में आएगा. अब देखो, इसमें है, बाकी बात किसके बारे में हो रही है, मेन बात हो रही है बेबीज के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, तो हाईलाइट वुड बी बेबीज एट द स्टार्ट. तो फिर मतलब बाकी में, क्योंकि it does not affect to have any effect on children, they look sweet elegant but at the moment से open their mouth, तो ठीक है. अगर बेबीज की बात हो रही है तो नेक्स्ट वुड बी दिस वन, ठीक है. बी के बाद ए आना चाहिए. दे स्टार्ट शाउटिंग, स्कूल टीचर्स ट्राई देयर बेस्ट टू डू इट एन अर्ली एज बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकंड्स, बट इट डज नॉट, ठीक है. तो डी के बाद सी आना चाहिए, और बी के बाद पहले बाद ए आना चाहिए. डी के बाद सी और बी के बाद ए, सी में है, आपका सी इज द राइट आंसर. दिस इज अ ट्रिक दैट यू नीड टू सॉल्व इट आउट. अगला करते हैं 11, दैट इज सिनोनिम, सेम मीनिंग करना है. क्वेश्चन आ गया आपके पास, इनएब्रेट. इनएब्रेट होता है जब आप किसी को ड्रंक फील कराते हो, किसी को इंटॉक्सिकेट कर देते हो, दैट इज टर्म्ड एज इनएब्रिएट, राइट.
अब किसी को ड्रंक करना सिनोनिम सेम मीनिंग करना है आपको, ठीक है। इंटीमिडेट क्या होता है, जब मैं बोलती हूँ किसी को डराना कि तुमने क्या कर दिया है, व्हाट यू हैव डन इट आउट, तो मतलब किसी को अगर मैंने थ्रेटन कर दिया है, दैट इज आई एम ट्राइंग टू इंटीमिडेट दैट पर्सन, राइट। खुद से भी करना, दैट इज यू, आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट आउट टिल नाउ एंड यू शुड बी बेटर इन पोजीशन टू सॉल्व। जैसे इंटॉक्सिकेट होता है, किसी को टॉक्सिक करना, यहाँ से आपको वैसे डिकोड हो जाना चाहिए। टॉक्सिकेट करना मतलब किसी को ड्रंक करना, दो इट इज मैचिंग, बट हमें बाकी दो मीनिंग्स भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इनंडेट। इनंडेट होता है व्हेन इट इज समथिंग, आई वुड से आप किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं जिसके साथ वो डील ही नहीं कर पाता है, राइट। तो किसी को प्लेंटी दे देना, दैट ही इज नॉट एबल टू डील विद इट आउट, मतलब ही इज नॉट एबल टू हैंडल इट आउट, हैंडल नहीं कर पाता है, दैट इज टर्म्ड एज इनंडेट। एंड देन कम्स दिस इन्फुरिएट। इन्फुरिएट क्या आ जाता है, जब आप किसी को बहुत फ्यूरियस, फ्यूरियस वर्ड से ही आ गया ना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा या एंगर दिला रहे हैं, दैट इज इन्फुरिएट। तो इनएब्रिएट हो गया ड्रंक से रिलेटेड, ये भी ड्रिंकिंग से रिलेटेड, सिनोनिम फाइंड करना है तो क्या आ गया, इंटॉक्सिकेट आ गया। सो 11 का ए ऑप्शन है। अगला है अगेन पैराग्राफ फॉर्म करना है, दैट इज योर जंबल सेंटेंसेस हैं आपके पास, एंड इसमें भी आपने फाइंड क्या करना है, नाउन के साथ। देखो सबसे पहले, अब आई थिंक जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको पहले नाउन दिख जाना चाहिए कि नाउन किस में आ रहा है। नाउन सिर्फ देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा, इजिप्टियंस का आ रहा है, ठीक है। तो यू वोंट बी वेस्टिंग टाइम, अब या तो सी, ए या बी ऑप्शन में से आ सकता है आपका, ठीक है। इजिप्टियंस बिलीव्ड, अब इजिप्टियंस के बारे में जब नेक्स्ट बात हो रही है, टॉम्स हैं, टॉम्स के साथ ये वाला लिंक्ड है, डी के बाद बी आएगा, चाहे आप लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज सी, ए, डी एंड बी ऑप्शन, दिस इज द सेकेंड वन विच इज बीइंग देयर इन द ऑप्शंस, ठीक है। थर्ड इट इज सिनोनिम ओनली, ड्विंडल करना, या इट इज वेरी इजी एंड अ वेरी प्रोमिनेंट वर्ड जो हम बोलते भी हैं रेगुलरली। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घटा देना, कम कर देना, मतलब अगर मैं घटाने की बात करूँ, डिक्रीजिंग करना या कम कर देना, जो मर्जी याद कर लो, अबेट भी बोलते हैं ना, डिक्रीज कर देना, ये भी आ जाएगा। अब करना क्या है, सिनोनिम, मैंने आपको अबेट इसलिए दे दिया, आपको यहाँ से ही फाइंड हो जाएगा, मतलब डिक्रीज कर देना किसी चीज को। ये होता है बढ़ाना, असेंड मतलब ऊपर, इंक्रीज करना, एनहांस भी इंक्रीज करना, एक्सटेंड भी इंक्रीज करना, तो बचा क्या, ड्विंडल के साथ अबेट ऑप्शन ही बचा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्कॉफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉफ? स्कॉफ क्या आ गया, दैट इज जब आप किसी को बोलते हैं एंड suppose I find someone very stupid and very idiotic, right? So the way I will be speaking that and to that person will be scoffing off. तो स्कॉफ का होता है जब आप किसी से बात करते हैं जिसको आप बहुत ज्यादा स्टूपिड या डम समझते हैं, दैट इज स्कॉफ, ओके। टू स्पीक अबाउट समवन इन अ वे दैट यू थिंक ही इज स्टूपिड, या बहुत ज्यादा कोई पर्सन है जो खाता रहता है, ईटिंग अ लॉट, दैट कैन ऑल्सो, और बहुत तेज खाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्कॉफिंग ओनली, ओके। समथिंग दैट यू फाइंड इज नॉट गुड और स्टूपिड, ओके। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या आ गए, ट्रस्ट, आई डोंट थिंक सो, ट्रस्ट का इससे कुछ लेना देना भी है तो उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, राइट। देन इट इज यू हैव द नेक्स्ट ऑप्शन इज अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है, हामी भरना, हाँ जी जी ठीक है, हम किसी के साथ हामी नहीं भर रहे हैं इसमें, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग वर्ड। अगला वर्ड क्या आ गया आपके पास, स्नीयर। स्नीयर होता है जब मैं अगर चीज कहती हूँ किसी को रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है। आप किसी के साथ जब आप फेस वाइज, जैसे सपोज करो आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है, यू दैट पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, you start making an expressions and you have a sneer on your face, that is you show no respect to that person, is termed as sneer. तो sneer and scoff they are actually the synonyms, and flatter होता है किसी की चापलूसी करना या तारीफें करना, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, चापलूसी नहीं कर रहे हैं। स्कॉफिंग का मतलब आ गया स्नेयरिंग। स्कॉफिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज के रिलेटेड क्या कर रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, एंड सेम वे स्नियर का मतलब ये होता है जब हम रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हैं। Next you have the fill in the blanks and you have to find out the right word for that. Again preposition, I called out dash my friend but she seemed to have disappeared in the dark. I called out, क्या आएगा, on my friend नहीं, at my friend नहीं, it is to my friend, okay. So you call out to someone, so it is to someone, okay, preposition based. Next is your again sentence में आपको इंप्रूवमेंट फाइंड करनी है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज फाउंड इन 2024 पेपर्स। 2019 के कंपैरिजन में करो तो इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंसेस नहीं आए थे आपको, राइट। इसमें क्या आ गया आपका, दैट इज बर्ड्स डिफर विद बीस्ट इन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फूड हैबिट्स। अब यहाँ पे है वर्ड है आपका विद। क्या आपको लगता है कि विद को रिप्लेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। बर्ड डिफर अमंग बीस्ट नहीं, हम अमंग्स तो नहीं निकाल रहे हैं, रॉन्ग वर्ड।
across, उसके आगे नहीं, it would be from that thing. So from is the right word. Birds differ from bees in their physical structures and food habits. Okay. Next is a misspelled word. आपको spelling wise find करना है. आपके पास 4 options हैं. The very first you have is accommodate. Accommodate, ACCOMODATE, बिल्कुल सही है. It is double M. देखो क्वेश्चन जब आता है ना, आपको सिंगल एम दिया होता है, ठीक है, बट इसमें याद रखना डबल ही सी आते हैं, डबल ही एम आते हैं. और अकोमोडेट क्या होता है? किसी को लेना, स्पेस में रखना, अपने पास रखना, अकोमोडेशन देना, दैट इज अकोमोडेट. ठीक है. परसुएड होता है किसी को मैनिपुलेट करना, अपनी चीजों में लाना, परसुएशन करना, दैट इज परसुएड. ठीक है. देन इज सोनरस. सोनरस क्या होता है? जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्लेजेंट सी एक साउंड होती है ना जो बहुत पसंद आती है, इट्स अ सोनरस साउंड. तो दैट इज समथिंग दैट इज अ सॉफ्ट साउंड, और यू कैन से इट इज अ प्लेजेंट साउंड, दैट इज टर्म्ड एज द सोनरस. और हरासमेंट, अगेन द राइट वर्ड शुड बी HARASSMENT, harass plus ment, and that is when you are misbehaving with someone, you are not nice to someone, that could be termed as harassment, right? तो ये आपकी spelling सही है. My main motive is to explain you the meanings also through this, and that is why I just gave you the wrong one. Accommodate के बस याद रखना, इसमें accommodate का गलत था, double C आता है, double ही M आता है इसमें. Then as I am fully conversant to the rules of the game. Now it is कि आपको क्या rules of the game. अब क्या है इसमें क्वेश्चन है कि क्या ज्ञान आपको सही लगता है, गलत लगता है. एंड द क्वेश्चन इज आई एम फुली कन्वर्सेंट टू द रूल्स ऑफ द गेम. नो, it is with the rules of the game. You are conversant with something, you are okay with something, and that should be the with is the right word. Next you have the misspelled word. License के बारे में है. Now see, this is very important. देखो, this is something common between two or more people जो आपस में काम करते हैं. That is termed as a licensed one, right? And the spelling it is LIASION. अब इसको फाइंड कीजिए किसमें है? LIASION. So it is there. आपको 4 वर्ड्स दिए हैं, चारों में ही डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें एक वर्ड आपको करेक्ट करना है. दिस कैन बी अनदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, दैट इज लाइसेंस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंस? व्हेन यू आर हैविंग common between 2 or more people that are working together, that is you are having licensing of them together. Next again you have jumbled sentences. अब इसमें भी देखो, jumbled sentences में आपको फिर से खुद से फाइंड करना कि आपको क्या फाइंड करना है. पहले तो नाउन फाइंड करना है, और मुझे नाउन बिना को देखे दिख रहा है, दैट इज गॉड से स्टार्ट हो रहा है. तो मेरे 2 ऑप्शंस क्या हो गए? कैंसिल हो गए. अब मैं देखूंगी गॉड के बाद गॉड के बारे में किस में बात हो रही है. सी में भी हो रही है और ए में भी हो रही है, क्योंकि इसमें लास्ट में तो रिजल्ट आ रहा है, तो डी तो आ ही नहीं सकता. भाई डी आ ही नहीं सकता तो ये आएगा ना. बाकी पढ़ो भी मत. अब दो यू डू इट आउट ऑन योर ओन, बिकॉज आई हैव डन इट आउट थ्रू द प्रैक्टिस विच आई एम मेकिंग इट. कि इतना जल्दी फास्ट हो रहा है. आप खुद से पहले एक क्वेश्चन निकालो, नाउन निकालो, फिर उसके बाद उसको देखो नाउन का कॉन्टेक्स्ट, या तो उसके बारे में प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, तो वो कीजिए एंड उसके बाद आप सॉल्व करो. अदरवाइज लास्ट से भी कर सकते हो. तो दिस इज समथिंग कम्स विद द स्पीड. मोर यू प्रैक्टिस अ जंबल, मोर स्पीड यू आर गोइंग टू एक्वायर. नेक्स्ट इट इज ल्यूसिड. आपको क्या फाइंड करना है? अब इसमें एंटोनिम फाइंड करना है, ऑपोजिट इन मीनिंग फाइंड करना है. सी इट इज ऑल्सो, कई बार होता है आप सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेशन से कर सकते हैं. जैसे ल्यूसिड होता है जो चीज़ है बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या है, क्लियर है. ठीक है, मतलब क्लियर है तो ये तो एविडेंट है, मतलब जो दिख रही है. डिस्टिंक्ट क्या हो गया? जो सेपरेट हो गया. रेडिएंट क्या हो गया? जो बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशी दे रहा है. और मर्की क्या हो गया? जो डार्क है. मतलब ये भी डिस्टिंक्ट का भी मतलब पता था, रेडिएंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. डिस्टिंक्ट भी सेपरेट करना मतलब क्लियर हो गया. जब आपने सेपरेट कर दिया चीज क्लियर हो गई. मर्की होता है जो होता है डल होता है, जो डार्क होता है. एंड 21 का क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. अगेन एंटोनिम यू हैव टू फाइंड इट आउट. 22nd ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन क्या आ जाता है? एक ऐसी स्टेट इन विच यू रियलाइज what is happening around you because you are all asleep. ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता what is going on without you. So it is when you are not aware, आपको नहीं पता है आपकी साइड पे क्या हो रहा है, because you are not having a good presence of mind maybe. So that is an oblivion state. Oblivion का क्या फाइंड करना है आपने इसका it is terms as आपका इसका opposite, right? जैसे एबियंस आ जाता है. एबियंस क्या हो जाता है? जब आपको एबे की स्टेट है, that is suspicions, आप श्योर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो. लेकिन कॉन्शियसनेस आपको देखा, अब यहाँ पे था कि व्हेन यू आर नॉट अवेयर, व्हेन यू आर नॉट इन अ कॉन्शियस स्टेट. कॉन्शियसनेस ऑपोजिट आ गया, यहीं पे आपको वर्ड मिल जाएगा. एक्सटिंक्शन भी हो गया, जो चीज खत्म ही हो चुकी है, दैट इज एक्सटिंक्ट, दैट इज ऑल एंडेड. इनएविटेबिलिटी क्या हो जाता है? जब आप बोलते हो कि आपको इट इज इनएडवर्टेंस. इनएडवर्टेंस इज व्हेन यू लैक अटेंशन. ओके, सो व्हेन देयर इज नो अटेंशन, दैट इज टर्म्ड एज इनएडवर्टेंस, राइट?
Next is misspelled word. Again, it is a misspelled word, and you have 4 words, that is suave, plateau, vague, and precise. Okay, so we have a suave, that is I think a right word. It is SUAVE, that's right. And then we have is, अच्छा suave का मतलब क्या होता है? I hope many of you are aware. क्या होगा suave का मतलब? Suave is something, I would say, that is termed as a very confident person, elegant person. ठीक है. प्लेटू क्या आ जाता था जब आपके पास एक बिल्कुल फ्लैट लैंड है और एक छोटा सा प्लेन आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज, छोटा सा हाइट एंड माउंटेन आ जाते हैं, स्मॉल माउंटेन से मिलते हैं, दैट इज प्लेटू. तो ये कॉन्फिडेंस के लिए हो गया, यूज के लिए हो गया. अच्छा, वेग, वेग होता है जो चीज़ है आपको, आई वुड से इट इज आउट इज नॉट लेना देना नहीं है, बट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी वेग थिंग, दैट्स नॉट वेरी रिक्वायर्ड थिंग, दैट इज टर्म्ड एज अ वेग वन, VAGUE, राइट. प्रिसाइज, प्रिसाइज, अब यहाँ पे प्रीसाइज है, गलत है. प्रिसाइज हमने बोला है, PRECISE. प्रिसाइज क्या होता था? जब बहुत ज्यादा एक्यूरेट, बहुत माइन्यूट चीज बोलते हैं ना, कम बोल के हम प्रॉपर एक एक्सप्लेन कर पाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ प्रिसाइज. और ये आना चाहिए था PRECISE, राइट. सो फोर्थ इज नो वर्ड, दिस इज नॉट अ वर्ड, तो ये गलत आ गया हमारे पास. 24th कर लो. We found his comments very pertinent, dash the point under discussion. Now when you are finding certain comments, right, so it is something that is closely connected with the subject. ठीक है, तो मैं pertinent किसको बोलती हूँ यार, ये बड़े ना relevant से points दे रहा था, dash the discussion. अब खुद सोचो, into the discussion आप देते हो points, आप किसके देते हो? आप हमेशा to the point होता है ना, to the point under, that is your discussion. So very pertinent, to the point under discussion. to the point आप बोलते भी हो और उससे आपको याद भी रहना चाहिए. Next it is, you have to substitute the words, and again no improvement if it is not there. It is not being familiar in the place we lost our way. So जब आप किसी place के साथ familiar क्या होते हो? You are familiar with something, you are familiar with that place, it's not in that place. So in क्या हो गया? गलत हो गया, it is with आ गया आपका. ये हमने बहुत ज़्यादा practice की हुई है sentence completion में. Again next is pronunciation. प्रोनाउंसिएशन बोलते ही गलत है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, गलत बोलते हो. सो इट इज प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन. B is the right word. Okay, so that is the way you speak, the way you speak a word, that is a linguistic analysis of the word. अगला आ गया, फिर से आपके पास सब्स्टिट्यूट करना है. It is 27th. Some descendants conspired over the government in a bid to topple it. अब डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? जो पर्सन डिसएग्री करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी नेगेटिव बोलते हैं, कंट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, इन अ बिड टू टॉपल इट. और टॉपल का मतलब होता है जब आप फॉल डाउन गिर जाते हैं, इन अ बिड की गवर्नमेंट को गिरा दें, तो उसके बारे में गंदा गंदा बोलो, गलत गलत बोलो, राइट. तो जब आप सम डिस्पायर्ड, अब यहाँ पे ओवर का अगेंस्ट हमने देखना है. सम डिसिडेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? कंस्पायर कर रहे हैं. अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, तो वर्ड ही हम खुद ही बोल पा रहे हैं. आप ओवर द गवर्नमेंट कंस्पायर तो नहीं करोगे, आप किसी चीज के अगेंस्ट ही करोगे. तो सी ऑप्शन आ गया. 28th देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. He was relieved dash his post as a manager of the bank. जब आप किसी पोजीशन से क्या होते हो? रिलीव ऑफ समथिंग होते हो, यू आर रिलीव्ड ऑफ समथिंग. इसके लिए आप फ्रेजियल वर्ब्स का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, सी ब्लैंक्स में टेंसेस आते हैं, प्रेपोजिशंस आते हैं, फ्रेजियल वर्ब्स आते हैं. प्रेपो में भी हाफ फ्रेजियल वर्ब्स ही दिख रहे हैं आप लोगों को, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना. और ये जैसे जैसे 24 का है ये पेपर, तो इट इज मोर एंड मोर इट इज हेल्पिंग यू आउट कि वहाँ पे फ्रेजियल पूछे जा रहे हैं. प्रिटेंशियस क्या होता है? अब प्रिटेंशियस वही होता है जो ट्राई किया जा रहा है मोर सीरियस, ट्राइंग टू बी अपीयर मोर सीरियस देन यू आर एक्चुअली, मतलब एक दिखावा करना, इट इज टर्म्ड एज प्रिटेंशियस. और हमने क्या फाइंड करना है? सिनोनिम फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें देखो कंजर्वेटिव क्या हो गया? जो बेसिकली आप चीज़ों को छुपाते हैं, मतलब कि सोच नैरो डाउन वाली सोच होती है ना जिसकी, दैट इज कंजर्वेटिव. एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, दैट इज टर्म्ड एज योर एग्जैगरेटेड. ठीक है, तो इट इज मोर एब्सेंट इज when you are refraining, आप मना कर रहे हो किसी चीज़ को, that is termed as absent. और dispassionate जब आप unemotional हो. तो ये तो हो गया हमारे unemotions के साथ. ये है चीज़ों को दिखावा करना एक तरह का, है ना. तो कंजर्वेटिव आ गया, ये तो चीज़ें ही छुपा रहा है, तो मतलब ये वर्ड एब्स्टिनेंट भी नहीं होगा, तो इट विल बी एग्जैगरेटेड. दैट इज अ नियर सिनोनिम. कोई एग्जैक्ट इसका रियल प्रॉपर सिनोनिम नहीं आ रहा, क्योंकि आप एग्जैगरेट करके बताते हो किसी चीज़ को, मतलब ये भी आप बढ़ा चढ़ा कर रहे हो. प्रिटेंशियस भी आप बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को दिखा रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज प्रिटेंशियस. फेकिंग, एग्जैगरेट में भी आप क्या कर रहे हो? फेक ही कर रहे हो. तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए? अलाइन हो गए. नेक्स्ट आ गया एंटोनिम फाइंड करना है. द वर्ड इज योर एनिग्मेटिक.
एनिग्मेटिक क्या हो जाता है आपका? दैट इज अ वर्ड विच मीन्स when you're a very mysterious person, that is termed as enigmatic, right? When you're a very hidden person, that is termed as your enigmatic, right? तो occult क्या आ जाता है? occult भी वही आ गया जब आप कोई चीज को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। अब एम्बिग्यूअस में भी क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, डबल मीनिंग है आपका पास, सरफेस मीनिंग भी है और हिडन मीनिंग भी है, तो एम्बिग्यूअस भी हो गया, डबल मीनिंग्स वाला हो गया। अब इक्विवोकल क्या आ जाता है, जब किसी के पास कोई सिंगल क्लियर मीनिंग नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज अगेन, जब आपके पास क्लियर मीनिंग नहीं होता है, इक्विवोकल, डबल मीनिंग्स के साथ आप कर लेते हो। एक्सप्रेसिव, आप बहुत ज्यादा क्लियर हो, दैट इज टर्म्ड एज, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज एक्सप्लिसिट। तो अब आपने एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम क्या आ गया, ये सारा क्या है, हाइड हाइड, इसमें ही क्लियर हो, तो डी आ जाएगा आपका, दैट इज योर क्लियर वर्ड आ गया। नेक्स्ट इज अगैन योर पैराग्राफ, जिसमें आपने फाइंड करना है, ओके, सेंटेंसेस को आपने अरेंज करना है। दिस मेड मी ईगर टू वेलकम द फर्स्ट गेस्ट एट होम एंड शो माई हॉस्पिटैलिटी। आई डिसाइडेड इट वाज अ टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, देयरफॉर आई बॉट एंड आई इंटेंडेड। अब सेम वे देखो आप, जिसमें आपको आई स्टार्टिंग में दिख रहा है, बी और डी में, तो बी और डी में ही होंगे ये आपके, राइट? अब देखो, या तो बी ऑप्शन आएगा या पे डी ऑप्शन आएगा। बी से देखते हैं, आई डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, आई इंटेंडेड टू बी अ मॉडल सिटीजन इन द नेबरहुड, ओके। अब अगर हम करते हैं सेटल डाउन की बात कर रहे हैं, तो सेटल डाउन यहाँ पे नेबरहुड, नेबरहुड रिपीट, मतलब सी और डी इकट्ठा नहीं आएगा, एक तो ये चीज याद रखना, सी और डी कभी भी इकट्ठा नहीं आ सकता है, राइट? कहीं सी और डी इकट्ठा है, हाँ, सी और डी इकट्ठा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट इट कैन बी, हम एक बार पढ़ के देखते हैं अच्छे से। इट इज neighborhood, neighborhood. This made me eager to welcome the first guest at home and show my hospitality. I decided it was the first time for me to settle down. I tended to be, therefore I bought a good house. Okay, for settle down, you need to bring a good house. Therefore I bought a good house in the respectable neighborhood. Okay, then it is, वैसे B और C आपका combined है तो यहाँ पे आपका solved है, but still हम solve करते थोड़ा सा difficult है ये। It would be respectable neighborhood, I need to be a good model citizen in the neighborhood. This made me eager to welcome the first guest. Okay, जब आपने welcome किया तो ये आएगा, D के बाद A आएगा, and it would be the B C D A starting, D option आपका आएगा, okay? I hope it is clear, क्योंकि इसका लिंक है जिसके साथ हो रहा है और ये दोनों आपस में लिंक है। Next is your again synonym find करना है। The word given is to you is frenzy. Frenzy होता है जब आप बहुत ज़्यादा इमोशन में हैं, that is not under your control, that is termed as frenzy. So that is not under control, but in the terms of emotional aspect, right? Harmony होता है मिलके रहना। हिस्टीरिया क्या होता था? हिस्टीरिया होता था जब आप एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जब आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन अ स्टेट ऑफ हिस्टीरिया, राइट? स्प्लेंडर क्या होता था जब आप बहुत ब्यूटीफुल या इंप्रेसिव आ जाते हैं। और फ्रॉथ क्या आता है? मास ऑफ स्मॉल वाइट बबल्स टॉप ऑफ लिक्विड, जैसे फोर्थ बन जाती है ना, यहाँ पे फोर्थ के छोटे छोटे बुलबुले से बनने, दैट इज नॉट एज अ फोर्थ। तो हमारा क्या आता है, सिनोनिम फाइंड करना है। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट एंड दैट इज टर्म्ड एज हिस्टीरिया। हिस्टीरिया इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट आउट। तो 32nd का क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। अगेंस्ट यू हैव द थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर एक्सट्रानियस। एक्सट्रानियस भी क्या आ जाता है? दैट इज अगैन रिलेटेड टू समथिंग दैट इज इररिलेवेंट, जो आपके पॉइंट से नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड से ही आ जाता है, नॉट टू द पॉइंट। अब कोई चीज है जो आपके पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। पर्टिनेंट, सुपरफ्लुअस, एडवेंशियस और रिडंडेंट, ओके। तो पर्टिनेंट क्या हो जाता है? जब आपके पास इररिलेवेंट है, जो आपके पॉइंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो पर्टिनेंट ही आ जाता है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द अदर मीनिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू। सुपरफ्लुअस होता है जो चीज है जो आपको चाहिए नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड, एंड आपके पास उससे ज्यादा है, सुपर में है, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ जाती है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सुपरफ्लुअस, ठीक है। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट इट इज वांटेड। देन इट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट इज कोई चीज आपको नहीं चाहिए, ओके। एंड अगेन इट इज योर वर्ड सी एडवेंशियस। एडवेंशियस इज समथिंग दैट इज योर अनप्लान्ड स्टेट। अब देखिए पर्टिनेंट, अब ये भी एक्स्ट्रा आ गया, नॉट टू द पॉइंट। सुपरफ्लुअस भी आ गया ज्यादा, मतलब ये भी सिनोनिम लग रहा है। एडवेंशियस भी आ गया आपका, जो बहुत ज्यादा है। रिडंडेंट भी है, जो एक्स्ट्रा है। पर्टिनेंट आ जाता है इसमें, दैट इज समथिंग दैट इज योर जो आपका क्लोजली कनेक्टेड है, मतलब समथिंग दैट इज रेलिवेंट। पर्टिनेंट होता है आई एम वेरी पर्टिनेंट टू दैट, आई एम वेरी फिक्स टू दैट, आई एम वेरी पर्टिकुलर टू दैट थिंग। मतलब ये सारे तीनों तो मुझे इसके सिनोनिम्स लग रहे हैं और ये ही अकेला इंटोनिम लग रहा है। तो पर्टिनेंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका इंटोनिम, और ये तीनों आ गए इसके सिनोनिम। मतलब यहाँ पे मोस्ट का तो नहीं पता,
बट तीनों ऑप्शंस रही है इसके आपके, ठीक है, अगर सिनोनिम पूछा गया। अगर एंटोनिम होता है यहाँ पे तो हमारा आंसर बनता पर्टिनेंट, ठीक है। अगला करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अगेंस्ट आपके क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया कि भाई ग्रीड प्रिवेल्ड डैश ऑन नेस्टी एंड ही स्टोल हिज मास्टर्स वॉच। अब ग्रीड क्या होगी, प्रिवेल, और नेस्टी से ज्यादा बढ़कर हो गई, तो ही उसने अपने मास्टर की वॉच को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो ज्यादा हो गई है तो ओवर आ गया हमारे पास, ठीक है, इट प्रिवेल्ड ओवर समथिंग। अगला आ जाते हैं 35th पे, दिस इज 35th। ओके, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। ओके, मिसस्पेल्ड हमने स्पेलिंग इसका, साथ में हमने मीनिंग भी करना है। बिरीव, बिरीव क्या होता है, जब आप किसी चीज के साथ डिप्राइव करते हो, रॉब हो जाती है आपकी चीज, सो दैट इज योर बिरीव। मतलब आप लिख सकते हो इट इज समथिंग, ओके ओके, इट इज टू रॉब समथिंग, दैट इज टर्म्ड एज अ बिरीव, बिरीव, राइट। नेक्स्ट कम्स इज योर बिक्यूथ। बिक्यूथ होता है जब आप किसी चीज को पास ऑन कर देते हो, मतलब मैं बोलती हूँ चलो ये चीज ना छोड़ दो भाई, अगली चीज पे चलते हैं, तो दैट इज व्हेन यू आर पासिंग ऑन समथिंग, व्हेन यू आर लीविंग ऑन समथिंग, leaving on the responsibility, leaving on the that is your succession to someone else, that could be also, that is a bequeathing, you are passing on to that thing, ये bequeath में आ जाता है। brandish जो होता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक हैप्पी स्टेट में आ जाती हूँ, सो ब्रांड से याद कर लो, ब्रांड के जब सपोज करो आपको फेवरेट ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी स्टेट, तो ब्रांडिश का मतलब भी यही होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और प्लेयर और खुशी वाली और चीयरफुल या एक्साइटमेंट की स्टेज में होते हो, दैट इज टर्म्ड एज अ ब्रांडिश। और लास्ट वर्ड आ जाता है, दैट इज योर बेकॉन। अब बेकॉन क्या होता है, इज इट राइट, आपको लग रहा है ये ठीक है या नहीं है? बेकॉन होता है, इट इज़ नॉट बेकॉन, पहले तो ई नहीं आता है लास्ट में, ठीक है। देखो आई एल टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली, इट इज बेकॉन, ये वर्ड पहले याद कर लो। बेकॉन होता है जब मैं बोलती हूँ चलो इधर आना, मैंने अपनी फिंगर्स के साथ कन्वे कर दिया दैट यू कम है, सो दैट इज बेकॉन, व्हेन आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट थ्रू माय फिंगर्स एंड आई एम पॉइंटिंग आउट टू समवन, तो बेकॉन होगा। आई होप ऑल द 4 वर्ड्स आर क्लियर। सेम एंटोनिम पे आ जाते हैं, जैसे पहला वर्ड है आपका ऑडियस। ऑडियस एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बहुत ही बुरा होता है, दैट इज टर्म्ड एज योर ऑडियस। एल्यूरिंग क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एबहॉरेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव फाइंड, इसका पॉजिटिव एंटोनिम फाइंड करना है, जो मुझे लगता है अभी तक एल्यूरिंग ही आ जाएगा, बट फिर भी करते हैं। अबॉमिनेबल भी क्या होता है, बहुत बुरा, मतलब वेरी बैड, समथिंग दैट यू डोंट लाइक। एनोनिमस, जिसके बारे में पता ही नहीं है, मतलब हिडन आ जाता है। तो ऑडियस जो आ गया वेरी बैड, एल्यूरिंग क्या आ गया पॉजिटिव, तो एक ही है पॉजिटिव, इसके बेसिस पे हमने फाइंड कर लिया 36 का ए ऑप्शन है। 37th का, राइट, सो इसमें भी वही करो फाइंड, कि आपको फाइंड करना है नेम एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट आउट, राइट। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, दैट इज नाउन। नाउन मारिया से स्टार्ट है, डी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और डी से आपका 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, गो फॉर द ए और इधर द डी ऑप्शन। Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off in a train to United States. Okay, she has not celebrated. अब इसके बाद जो ऑप्शन लग रहा है ट्रेन, अब या तो ट्रिप के बारे में आएगा, बर्थडे बारे में आएगा। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं पता कौन है, कंपनी नहीं किया है उसके साथ, तो इट कुड बी, हमने यहाँ पे ट्रिप के बारे में बात की है, तो ट्रिप में सिर्फ ए ऑप्शन, सो इट इज या it will be that trip to Florida with her father. Yuri launched her on the path to success, and but it was all required how to get a 2-year separation from mother Yelena. She could not accompany her daughter due to visa restrictions. Okay, so Yelena ने कंपनी नहीं किया, तो ये आ गया आपका A ऑप्शन is the right one. 37 का A. Next आ जाते हैं, visitors are prohibited dash feeding animals in the zoo. अब visitors are prohibited, किसी चीज से prohibit कर रहे हो, तो you are prohibiting from that thing, right? नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटोनिम, दैट इज यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एल्ट्रूजिटिक। एल्ट्रूजिटिक होता है कोई चीज़ है जो आपकी सेल्फलेस है, आप दूसरों का ज़्यादा सोचते हो, फिलैंथ्रोपिक आ जाते हो, सो दैट इज टर्म्ड एज योर दिस, ठीक है। अब बेनेवलेंट भी वही होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, फिलैंथ्रोपिक भी होता है जो बहुत जनरस होता है, गरीबों की हेल्प करने वाला, चैरिटेबल होता है, दैट इज फिलैंथ्रोपिक। मैग्नानिमस भी समवन हु इज वेरी फॉरगिविंग, वेरी, जैसे मैग्नानिमस का भी आ गया, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अनचैरिटेबल ऑपोजिट ही दिखा रहा है, सो 39 का क्या आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट होता है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक होता है जैसे इफ आई से आई लव माई सेल्फ वेरी मच, दैट इज समथिंग सेल्फ लव के रिलेटेड में, और आप ऑब्सेस्ड हो अपने साथ से, दैट इज टर्म्ड एज नार्सिस्टिक, राइट। और नार्सिस्टिक का आ जाता है, करेक्ट स्पेलिंग क्या आ गया, NARCISSISTIC, सो इट इज, ये सही लिखा है, दोनों ही सही लिख दिए हैं, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो मर्जी लिख लो, तो ये भी सही लिख रहा है, NARCISSI
STIC, तो दोनों ही ठीक है, इसमें स्मेलिंग आ गए आपके नार्सिस्टिक है. ऑल यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑल्सो. ठीक है, दैट इज समथिंग सेल्फ लव, जैसे करीना कपूर से इज मैं अपनी फेवरेट हूँ तो ऑब्सेस्ड हूँ आप अपने साथ, तो दैट इज टर्म्ड एज योर नार्सिस्टिक, राइट. अब आ जाता है आपका आरसी बेसिस पे. आरसी के बेसिस पे आपके पास 10 क्वेश्चंस है, फटाफट पढ़ते हैं. पहले आप थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पढ़ लो ताकि आपको क्वेश्चंस करने इजी हो जाते हैं. I'll be reading it out. आप पॉज करके या डॉक्यूमेंट अगर निकलवा लिया तो खुद से सॉल्व करना. I'll be just helping out with the answers. Hampi, the city of ruins situated in the shadowed depth of the hills and valleys in the state of Karnataka, is a historical delight. Surrounded by 500 monuments, beautiful temples, bustling street markets, bastions, trendy building, captivating remains of Vijayanagara Empire, Hampi is a backpackers' delight. Hampi was the capital. अब यहाँ पे हम्पी के बारे में है कि कहाँ situated है, कितने monuments के साथ surround आ रही है. It was the capital of Vijayanagara Empire around 1336 and by some accounts the second largest city in the world at that time. The terrain around Hampi is as mysterious as the ruins itself. The city is surrounded by boulders of different sizes and you can climb to the top of them with a little effort to get a stunning view of the entire city and geographic. So basically it is telling us कि what is a viewpoint. It is located on the Tadbangara river. Okay, river पर located है, famous है बहुत ज़्यादा because of the beautifully carved temples, especially the Virupaksha temple dedicated to the patron deity of the empire. Built during the 7th century, the temple is about to one of the forms of Lord Shiva called Lord Virupaksha, and the temple has tall towers and gopurams acting as the gateways to the inner sanctums, as is usually seen in the temples of South India style architecture. The gopurams lead to many inner corridors and halls, all decorated with ornate stonework. The sculptures depict mythological stories of numerous gods and goddesses. The most impressive structure in Hampi, the Vithala temple, dates back to the 16th century and is truly splendid example of rich architecture. The famous stone chariot, which was become an iconic symbol of the architecture of Hampi, is located on the premises of this temple. The temple complex is spread over a huge area. The main gate has an impressive arch with carvings and open in a large courtyard, which is famous stone chariot in the center. Main temple is located just behind the chariot and has beautiful carvings, and there are several other smaller temples inside the courtyard, all of which are definitely worth a visit. The carvings on the wall pillars of these structures depict various gods in different forms. Hampi was declared UNESCO's World Heritage Site in 1986 and many efforts have been taken to restore the lost glory of the place. Very limited, if any, modern establishments are allowed in the main area, which gives an authentic feel to the ruins. So basically it is about all the structure, all about the architecture, and you can just write down the pointers whenever you feel at the site. I'll be helping it out. आप इसको पीछे क्रॉस करके देखना. जैसे अब आइकॉनिक चैरियट है, सिंबल है आर्किटेक्चर का हम्पी, ये गोपुराम के लिए रिगार्ड किसके लिए हो रहा था, एक स्टोन चैरियट के लिए रिगार्ड हो रहा है, तो ए इज द राइट ऑप्शन इन दैट. सेकंड आ रहा था आपके पास, सेम क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, हम्पी रिटेन्स द ऑथेंटिक फील ऑफ अ र्यून. अब ये इसको ऑथेंटिक फील ऑफ अ र्यून क्यों किया जाता है, हमने पढ़ा था क्योंकि कोई भी मॉडर्न एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं अभी अलाउ नहीं की गई है, तो ऑथेंटिक फील ऑफ अ र्यून तभी आ रहा है क्योंकि कोई मॉडर्न उस पर चेंजेस या एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं आ रही है. थर्ड है हमारा, ओके लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. इन विच सेंचुरी वॉज हम्पी इन द कैपिटल ऑफ विजयनगर दिस, तो ये ऊपर दिया भी हुआ था, कौन सी सेंचुरी में लिखा था हमारा. सो बेसिकली या तो कौन सी सेंचुरी आ गई, इट इज बेसिकली रिटन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज योर 14th सेंचुरी. यहाँ पे आपने खुद देखा होगा 13 के पास या 1336 एडी दिया था, तो इसका सेंचुरी कौन सा आ गया, 14th के पास आ गया आपका. नेक्स्ट इट इज वेयर इट इज, ओके, इन द प्लेस इन द पैसेज बैक पेपर डिलाइट. अब यहाँ पे आपका एक वर्ड मीनिंग फाइंड करने के लिए किया जा रहा है, दैट इज जो बैक पेपर डिलाइट है उसका मीनिंग कहाँ से आ रहा है. दैट इज समथिंग, बैक पेपर डिलाइट मीन्स को डिलाइट करे, दैट इज अ पिलग्रिमेज टूरिस्ट, और टूरिस्ट डिलाइट आ गया इसमें. और 45th क्या आ रहा है आपका, which of the following about Hampi is not true. Okay, there are smaller temples inside with, हाँ बहुत सारे temples हैं located at the banks of Tungambara river, that is fine. Lord Shiva का deity आता है, it is the largest city in the world around. ये mention नहीं है कि largest city थी, तो that is not true about it. ठीक है, that is termed as 4th one. ये हमें डाउट है 45th में. अब एक और है आपका, दैट इज द सेम पैसेज कि कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफर इंग्लैंड. मतलब मेटाफर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिनोट करते हो, सिमिलर मेटाफर में ये डिफरेंस है. इफ
you say that she's as beautiful as moon, you're using as or like in between. If you say she's moon, she's my moon, आपने कोई दो चीज़ों में सिमिलैरिटी तो पिक की है बट आपने कोई वर्ड लाइक और एज नहीं यूज़ किया है, सो दैट इज योर मेटाफर. सो कैम्ब्रिज मेरा मेटाफर था इंग्लैंड के लिए. इट वॉज अ स्ट्रेंज व्हेन आई लेफ्ट, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स because I met Stephen Hawking there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, a poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university, because I had quite forgotten that his most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, one of the biggest sellers, lived there. When walking tour was done, I rushed to phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phone Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him that I had come in the wheelchair from India, okay, and to round about my travels in Britain, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do, मतलब आधा घंटा 10 मिनट भी काफ़ी है. Half an hour he said, okay, from 3:30 to 4 आपको half an hour मिलता है, okay. And suddenly I felt weak all over, मुझे बहुत weakness feel हुई. Growing up disabled, you get up with the people asking us you to be brave as you have a courage account on which you're too lazy to draw a check. The only thing that makes you sing stronger is somebody like you and achieving something huge. कि आपके जैसा कोई हो लेकिन बहुत ज़्यादा उसने achievement handle की हो, then you know that how much is possible. You reach out further you have ever could. I haven't been brave, said his disembodiment computer voice the next afternoon. I have no choice. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. He was tapping at the letter switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. Every so often his eyes would shut in the frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts, and came out of the frozen phrases and sentences stiff as corpses. I tell you one thing I have seen in all the RCs जो अभी तक आए हैं, one is always an abstract one, another is always some factual one. जैसे ऊपर वाला था एक historical या facts के basis पे आता है, दूसरा हमेशा कुछ आपके abstract emotions या उस context पे आता है. जैसे अब इस पे है the narrator pulled the telephone cord outside the booth. अब उसने booth के बाहर क्यों pull out किया था? Basically the reason was eager to get an appointment, or eager था, unable to hear clearly within the booth. There was someone उसने pull किया था because he himself was in a wheelchair and he was pulling out the booth, right? This telephone cord. So it was a D option because he was unable to enter the booth because he was on a wheelchair, right? Next आ जाता है again a question that is according to the narrator क्या चीज़ है जो एक disabled person को strength दे रही है, right? So encouraging from friends, no. To be treated as an equal, no. Witnessing the success, हाँ दूसरा पर्सन जो उनके जैसा हो और वो ब्रेवरी फील करवा रहा हो, दैट इज द सी ऑप्शन. विटनेसिंग द सक्सेस ऑफ अनदर लाइक हिम, जब आपके जैसा ही कोई प्रॉब्लम में फेस हो लेकिन बहुत अच्छा कर ले. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड. ओके, यहाँ पे आपका वर्ड मिसिंग है. आई टेल यू द वर्ड विच वॉज गिवन इन द पैसेज वॉज डिसइंटीग्रेटिंग. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेटिंग जब वर्ड आ जाता है तो दैट इज कॉरेटिंग नहीं आएगा, डिसइंटीग्रेट करना सेपरेट, मॉरिबंड आ जाएगा. ठीक है, तो मॉरिबंड भी ऑल्सो होता है जो होता है कि चीज़ों को सेपरेट करना, और डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब ये होता है जो आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. ये दिस वॉज नॉट कंप्लीट क्वेश्चन. ओके, देन इज व्हाई डिड द नरेटर फील गिल्टी व्हाइल कन्वर्सिंग विद हॉकिंग. अच्छा, हॉकिंग के साथ गिल्ट क्यों आ रहा था उसको? हॉकिंग वॉज बिजी पर्सन, नहीं, ही वॉज अनेबल टू कन्वे हिज ब्रिलियंट आइडियाज. हाँ, जो बहुत उसका फिंगर्स नंबर थे, वो बार बार उसको एफर्ट देता था बोलने के कारण. ही वॉज नॉट एबल टू, यू कैन से ही वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, तो उसको बहुत एफर्ट करने पड़े थे. ही हैड ट्राइड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन हेयर इट इज एस्ट्रोफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. अच्छा, ये अब बहुत ईजी भी है, इवन इफ यू नॉट अवेयर अबाउट दिस, इट इज सिंपली एस्ट्रोफिजिक्स. तो आ जाता है जो बेसिकली स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ डील कर रहा है. दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बी ऑप्शन. Now all done. I have just given you a review of the most important things that you need to practice. जंबल जैसे अच्छे से करो, आरसीज की प्रैक्टिस करो. आरसीज में ना लिख के करो, दैट वुड बी अ वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट आउट. इट्स अ लॉन्ग पैराग्राफ, सो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे यू दैट बेसिकली इट इज वन ऑफ द फैक्चुअल, वन इज अ हिस्टोरिकल, अनदर कोई लिटरेचर बेसिस या एब्स्ट्रैक्ट ही आ रहा है. जैसे ये हॉकिंग्स पे आ गया, लास्ट टाइम शेक्सपियर पे था, कोई भी ऐसा आ जाता है जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आ जाता है. तो प्रिपेयर इट वाइजली अपने फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशंस और टेंसेस के बेसिस पे. अब इसमें 2024 में टेंसेस पे कम आए हैं बट फ्रेजल वर्ब्स बहुत उठा लिए हैं, तो दैट इज टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं. अब एरर नहीं तो उन्होंने इंप्रूवमेंट दे दिया, तो ऑलमोस्ट ऑल इट इज सेम, बट ऑल यू हैव टू डू इज यू प्रैक्टिस टू द बेस्ट. So take care guys, and I'll be coming soon with the next PYQ of another branch, and all the best. Take care and have a good day.
you.